Jai Hind, good morning everybody. Hope you all are fit and fine at home. So today I'm back with another part of the chapter number 1, Nature and Significance of Management. This is the last segment of chapter number 1 BA. So without wasting much time, let's get started. Yes, apart from this, we have studied up to 1.5. Right, up to 1.5 we have finished our chapter number 1, which is level of management. And now onwards we are going to complete about 1.6, 1.7 and 1.8. These 3 points we are going to cover in this video. So as you can see, 1.6 mention the functions of management, right? So there are, especially in your textbook, it was mentioned the 5 major functions of management were mentioned in your textbook, which are: number 1, planning; second is organizing; third is staffing; fourth is directing; and fifth one is controlling. So these 5 steps or these 5 functions we are going to study in your textbook, 12th Commerce English Medium Gujarat State textbook. These 5 major functions were given. We are going to see that. And then coordination. Then we are going to see the coordination, meaning, characteristic and importance of coordination, like why it is played a vital role in any management, right? And the last, third topic which we are going to see here, which is functional area of management. Although management is required everywhere, yes, it is required everywhere, but although in in an organization, management especially resemblance with marketing, number 1. Second is human resource, which is also called HRM, human resource management. Third is financial management, and fourth is production management. So these 4 areas are considered to be the functional area of management. Understood? So let's get started without wasting much time. As you can see, this is your page number 8, and it shows you the functions of management, right? Functions of management. In the first line, as you can see, please underline it: management should be done efficiently to accomplish the objectives. We have seen this also in earlier slides, but although I'll explain it again, whatever the things we are deciding, whatever the target we are deciding, the only thing which can fulfill that target, it's only one thing, which is we have to work efficiently, right? Efficiently, we have to work efficiently. So note it down and keep in your mind. In exam also you have to write this first sentence. This should be your first sentence, that to accomplish any objective, what management required, they required efficiency. And how they'll have efficiency? See, there are different like in your textbook, there are like 5 economics has given different perspective or concepts according to their. As you can see, Coates and O'Donnell, they have mentioned the function of management in that 5 segments which we are studying right now: planning, organizing, staffing, directing and controlling. But apart from Coates and O'Donnell, Henry Fayol, yes, you have heard his name also previously. Henry Fayol has given as you can see, number 4, coordination. He has included a new concept in the functions of management apart from Coates and O'Donnell. And third, Peter F. Drucker, whose very much definitions we have studied in 11th also. Here, as you can see, he has divided the function into 3 parts: managing the business, managing the managers, and managing the workmen of work. So according to him, the main functions are these 3, right? So keep in mind also. Second last, Luther Gulick. Luther Gulick has mentioned a most appropriate, I can say, or most modern technique, which you are going to study in further studies also in your commerce. Like if you will do BB, MBA or something, you will study this: planning, organizing, staffing, directing, coordination. Up to here, we are finishing off reporting and budgeting. These 2 also important role or functions which includes in management, right? You are going to study this, but after your 12th course. And last but not the least, George Terry, he has classified this function into 4 parts: planning, organizing, directing and controlling. So apart from this, in your textbook we are going to study only 5 aspects or 5 functions of business management, which is planning. As you can see in the figure, the topmost is planning, and then arrow comes to organizing, and then comes to staffing, and then direct, and last one is controlling. And then this whole process continues and continues, because it does not stop.
because business will not stop earning. That's why this is a continuous process. So let's start at this planning. The first one, as please underline this statement, is a very important one. Even God cannot change your past, but men can change their future. Yes, भगवान भी आपका अतीत नहीं बदल सकते, पर मनुष्य अपना भविष्य बदल सकता है. That's why I'm saying this and why it is written in your textbook, because if you will do proper planning, if you will do a proper planning in any of the work, whether it is management or other than the management, also in your life also, like suppose for an example, in your 12th commerce, those who are appearing for 12th commerce, if you will plan your studies, if you will plan your lifestyle, if you will plan your timetable accordingly, you will achieve the desired result. If you have desired 90%, you will achieve it. Why? Because you are planning in efficient manner. So that's why this line has said कि even God cannot change the past, but man can change its future just because of planning. So in the second paragraph, as you can see, what things included in planning, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लानिंग में इंक्लूडेड है, तो प्लीज़ अंडरलाइन करिएगा. What to work, क्या करना है, who will work that, कौन करेगा उस काम को, when it will be done, कब होगा ये काम, how it will be done, कैसे होगा ये काम, and then what extent, in short कितने बड़े लेवल पर ये काम हम लोग करने वाले हैं. So ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, this all answers are come under the section on one step which is planning. आज हम अगर हम एक दूसरे एग्जाम्पल को भी देखें, आज हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या फिर हम कुछ भी कहीं काम सपोज हम कहीं जाते भी हैं तो भी हम प्लानिंग करते हैं मीन्स कि हमें हमारा पूरा जो भी है योजना है वो बनानी पड़ेगी. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं सोचेंगे, हम नहीं प्लान करेंगे, तो ये हो सकता है कि हमें फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी. इट विल मेक अस आवर टास्क मोर डिफ़िकल्ट. So to avoid this, planning is must. And in the last line of planning, as you can see, it is also a very important one. Planning is the base, right? Please underline it. It is a base. Why I am telling you this is a base, because this is the initial activity number one, and apart from एक planning, the other activity are initiated, right? यानी planning एक तरीके का base है, ठीक है, एक आधार है. उस आधार के ऊपर ही दूसरे जो फंक्शंस हैं, दूसरे जो मैनेजमेंट के फंक्शन है, वो ही उसके साथ प्लान करेंगे, उसके बाद आएंगे, राइट? आप पहले प्लानिंग करेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, उसके बाद ही आप चीज़ों को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. सो प्लानिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप. एज यू कैन सी, इट इज़ 1.6.2 ऑर्गेनाइजिंग, राइट? व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग, ये वर्ड आप बहुत फेमिलियर होंगे इस वर्ड से. ऑर्गेनाइजेशन से ही ये शब्द निकला, ऑर्गेनाइजिंग. इसका जो अगर हम मेन मीनिंग, अगर इसका स्मॉल में मीनिंग समझने की कोशिश करें, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डिफाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. In the last video we have discussed about authority and responsibility. Authority means those who are having power, those who are working in the top management, top management, those who are working, and because they are having power, they are, whether they are trustees, they are president, they are CEO, they are MDs, they are having power, right? They'll decide the what to do, how to do. After planning, they have to implement it, they have to make a structure how the things are going to be performed. That's why organizing is the second step of management, which is also important as planning did. As in the second paragraph you can see, organizing or organization includes number 1 objectives, number 2 policies, number 3 programs. These all things are included in organization, right? Organizing, second step. And if you look part of this second line, if you can see the second paragraph, second line, the activity of business is divided into various sections, different sections. The activities were divided, but after dividing that activities, organization distribute authority and responsibility. As I said, authority is the power and responsibility is the things whatever you have assigned. जो काम आपको दिया गया है, जितने समय में आपको पूरा करना है, आप अपनी संस्था के प्रति जिम्मेदार बनते हैं. अंडरस्टूड? सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरपर्सनल
relationship with the person who is at top level and the person who is at the bottom level, between them. And last but not the least, last line shows you that planning is the brain of the organization. अगर हम एक लाइन में एक टुक में बात समझे जाएँ तो मैं कह सकते हैं प्लानिंग इज़ द ब्रेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग इज़ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी अगर प्लानिंग एक बिजनेस का दिमाग है तो ऑर्गेनाइजिंग उसी बिजनेस का शरीर यानी बॉडी है, हमें मान सकते हैं, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9. Before that, it is a small representation which shows you the function of management. As I have told you, planning is the first one. ठीक है, the basic step, the initial step, which shows activity to achieve objectives. What is your objective? What is your target? As I have given the example that if you are in 12th commerce, आपको ये सोचना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है. Secondly, organizing. रिसोर्सेज एक्टिविटी अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. अब मैंने सोच तो लिया है कि 90% आई एम गोइंग टू गेट इन 12th कॉमर्स, राइट, बट हाउ आई विल गेट इट इफ़ आई एम नॉट हैविंग टेक्स्ट बुक, इफ़ आई एम नॉट हैविंग लाइक मटेरियल, इफ़ आई एम नॉट हैविंग गाइडेंस. अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो मैं कैसे अपने रिजल्ट को पा सकता हूँ. सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सिर्फ प्लान करने से ही चीज़ें हम कहें तो इट्स नॉट अकम्प्लिश, पूरी नहीं होती. एंड द थर्ड वन इज स्टाफिंग. स्टाफिंग इज़ द वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट, राइट. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि असाइनिंग अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, यानी किसी एक सही व्यक्ति को सही काम के लिए चिन्हित करना या फिर उसका चुनाव करना. अगर आप किसी लाइक इन द मूवी ऑल्सो यू हैव सीन दैट कि इफ लता मंगेशकर विल if she had taken part in sport and Sachin Tendulkar has taken part in singing, आपने सुना भी होगा इस चीज़ को 3 Idiots के अंदर. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि स्टाफिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप कैपेसिटी के हिसाब से अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर वर्क नहीं दोगे तो वो उसकी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा, राइट. सो द फोर्थ स्टेप इज डायरेक्टिंग आफ्टर गिविंग और असाइनिंग द टास्क. द फोर्थ स्टेप इज एम्प्लॉयज एक्टिविटी टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ एक्टिविटी. यू हैव टू monitor on them whether they are doing that work or not. So this is the fourth step, directing. And last is controlling. What is controlling? As you all know that if they will do any mistake, if they will not work according to the organization objective, you need to restrict them, you need to take them back, and you need to guide them to work in a right direction. So these 5 steps are very much important in the part of management function. Figure 1.3.1 also shows you that these all activities are internally connected. So let's move on, page number 9, which as we are discussing that planning is the brain and organization is the body of the business. And then in the second line, in the same manner the functions of planning business units are taken intellectual decision. In order to implement that decisions, distribution of work, authority, responsibility, which is done in the favor of organizing, right? I hope everybody is clear with planning and organizing. कि planning क्या होता है, कैसे plan किया जाता है, after planning what we need to require in organizing. And the third step is staffing, as we all are discussing that choosing a right person for the right work. But in your textbook, as you can see that कि staffing is the arms and legs of a unit. Yes, अगर हम कहें कि planning brain है और organizing body, तो उस body के अंदर जो हाथ और पाँव होंगे वो होंगे staffing, क्योंकि यही वो लोग हैं. These are the people, those who are working off. यही है जो आपके लिए काम करेंगे, right? So these are the limbs according to Dr. George Terry. Staffing is concerned with availing and maintaining of satisfactory manpower. ठीक है, satisfactory manpower यानी आपके पास मैन पावर जितना आपको ज़रूरत है या फिर जितनी उस काम के लिए ज़रूरत है उतने आपके पास होनी चाहिए. यही एक आसान शब्दों में कहें तो स्टाफिंग मानी जाएगी. Whereas any organization without staff is just like skeleton, right? skeleton पता है सभी लोगों को क्या होता है, ठीक है, हड्डियों का ढांचा. उसी तरह कि अगर आपने प्लान अच्छे से किया, आपने ऑर्गेनाइज अच्छे से किया, लेकिन आपके पास स्टाफिंग नहीं है, मीन्स आपके पास पीपल नहीं है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसा स्केलेटन है, वो सिर्फ सोच रही है बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है.
That's why third step, staffing, is the come to an very important extent. As you can see, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है. दैट इज सिलेक्शन. यू हैव टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, ट्रेन इट वेरी वेल. ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है. इफ़ यू रिक्वायर सम इफेक्टिव पर्सन ओवर सम अदर प्लेस, सो यू कैन ट्रांसफर इट. प्रमोशंस इफ दे आर डूइंग गुड जॉब्स. डिसमिसल्स इफ दे आर नॉट डूइंग गुड जॉब्स. रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ अ टेन्योर, लंबे समय से आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है और अब उनकी उम्र हो गई, अब उनसे काम नहीं हो पा रहा है, तो अब उन्हें हम रिटायर भी करते हैं. सो ये सारी वो चीज़ें हैं स्टाफिंग के अंतर्गत, या फिर हम कहें कि जो स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड की जाती है, मानी जाती है. एट अ प्रेजेंट स्टाफिंग इज़ ऑल्सो अ मैन पावर प्लानिंग. ठीक है, मैन पावर प्लानिंग भी हम इसे कह सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानव की सोचने की, समझने की और कार्य प्रणाली को बेहतर तरीके से करने की क्षमता को और ही ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाता है. ठीक है, इट डेवलप द ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो जनरली इवैल्यूएशन ऑफ वर्क दोनों के लिए ज़रूरी है. एक अथॉरिटी जो दे रहा है उसके लिए भी और जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए भी. ठीक है, दोनों के लिए ज़रूरी है. अगर आप वर्क को इवैल्यूएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वॉट एवर द टास्क विच यू हैव बीन असाइंड, क्या आपने वो पूरा किया या नहीं किया. वो इवैल्यूएशन करने के बाद, लाइक योर रिजल्ट, आपके एग्ज़ाम के बाद आपका जो रिजल्ट आता है वो इवैल्यूएशन के बाद पता चलता है. तभी आपको पता चलता है कि वेदर यू हैव गॉट पास्ड और नॉट. सो दैट्स व्हाई स्टाफिंग इज़ इम्पॉर्टेंट in the functions of management. This is the third step of management. Fourth, the second last step which you are going to study in your textbook was directing. Directing is why it came to an existence. Like if you have planned that I am going to have 90%, if you have organized, you have done all the books and the material, if you have got good teachers, right? You have staff, with staffing also done. And then the fourth step, directing. Whatever you have planned, whatever you have organized, if you are not doing that, right, या फिर continuously रोज आप उससे नहीं करते, 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर छोड़ दिया, हम नहीं कर पा रहे या फिर नहीं कर रहे हो. ठीक है, अगर वो वर्क कंटिन्यूटी के साथ नहीं हुआ तो भी आप अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव में फुलफिल नहीं हो पाओगे. अंडरस्टूड? सो after planning, organizing and staffing, the fourth step is directing. You have to keep focus on that direction कि आप कंटिन्यूटी अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ें. स्लोली बढ़ी पर बढ़ें. That's why directing provides guide and supervise. Underline these 2 words. It provides guidance and it provides supervision. ठीक है, दोनों तरीके से हेल्प करता है. And then in that paragraph you can see it is also formed with raw material, machineries, purchase, staff appointed. ये भी बहुत ज़रूरी है. And also in the second last line, directing done specially on subordinates, those who are working in your organization. You have to supervise them. You have to give them order. You have to give them proper instruction. ठीक है, proper instruction कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, आपके टाइमिंग्स क्या होंगे, आपको कितनी सैलरी मिलेगी. इन शॉर्ट एवरीथिंग डूज एंड डोंट्स के साथ आपको डायरेक्ट करनी है ताकि वो लोग प्रॉपरली अपने काम को अंजाम दें, प्रॉपरली उस काम को कंप्लीट करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करें. एंड एज यू कैन सी इन द लास्ट लाइन, टू मोटिवेट द वर्कर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. डायरेक्शन ऑल्सो मोटिवेट. इफ लाइक टीचर्स if your teachers will not teach you, see, if they will not teach you, if they will not guide you according to the problems, according to the challenges in future, might be you will not achieve your desired result according to the plan. ठीक है, अगर वो लोग पढ़ाएंगे नहीं, वो लोग सिखाएंगे नहीं, तो शायद जितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते थे आप नहीं कर पाओगे. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट्स वाई डायरेक्शन gives you guidance and supervision to work in a right direction. And then comes the fifth number, the fifth important function of business management, it is controlling. ठीक है, controlling शायद बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को जानते भी होंगे कि क्लास में if you are making noise, if you are making if you are enjoying in the class, making noise or doing inappropriate thing in the class, teacher used to scold you, teacher used to control you, right? Many times. So in the same sense of organization also, if
planning he has done very effectively, organizing also done, staffing also completed, direction people are working, and then the fifth step comes controlling. We have discussed controlling is the maintaining balance of efforts, result, resource and objective. Maintaining balance यानी अगर कंट्रोलिंग है यानी है क्या, एक संतुलन है. किस चीज़ का संतुलन है जी? एफर्ट्स मीन जो भी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ, लाइक 12 कॉमर्स 90% मेरे दिमाग में है, मैंने मेरे एफर्ट्स डाले, वॉट एवर द थिंग आउट एवर आई हैव डिसाइडेड, मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया, वॉट एवर मैंने सोचा, बट उस सोच को अगर मैंने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसमें बैलेंस नहीं रखा, राइट, तो वो जो भी मैंने प्लान किया है वो मुझे फुलफिल नहीं होगा. सो कंट्रोलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the business organization. And then comes in second paragraph, there are two approaches, traditional and modern approach. Traditional approach shows you controlling is a negative aspect. Why it is negative? कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, तो आप उसे फिजिकली या फिर उसकी मेंटली आप उसे अप्रोच करिए और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करिए. आप उसे स्ट्रिक्ट करिए, स्ट्रिक्ट अप्रोच करिए, और पनिशमेंट या फिर कुछ कोई ऐसे ट्रांसफरिंग या होल्डिंग या फिर उसका डिमोशन या फिर कुछ ऐसा करके आप उसे प्रॉपरली वर्क की तरफ चैनलाइज करिए. ये ट्रेडिशनल अप्रोच है. बट मॉडर्न टाइम्स में हमने देखा है कि इफ़ यू आर बीइंग हार्श टू एनीवन, इफ़ यू आर गिविंग देम नेगेटिव अप्रोच, दे विल नॉट वर्क विथ हार्ट विथ यू, राइट, दे विल नॉट वर्क विथ यू एज विद देयर हार्ट. सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पॉजिटिव अप्रोच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, विच इज़ इन सेकेंड पैराग्राफ. कंट्रोलिंग इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच इन मॉडर्न टाइम्स. हाउ टू पॉजिटिव अप्रोच आई एम टेलिंग यू. कंट्रोलिंग करेक्टिव मेजर है. करेक्टिव मेजर मीन्स इफ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक, द कंट्रोलर शुड नॉट स्कोल्ड यू, कंट्रोलर शुड नॉट stressed out you in a physical or mental manner. He or she has to identify the mistake, where is the mistake, and as you can see in the last time, mistakes are made in past are not repeated in future. जो भी चीज़ें आप पहले करते आए हैं, गलती करते आए हैं, उस गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना, ये भी एक तरीके की कंट्रोलिंग है, जो मॉडर्न अप्रोच हम इसे कह सकते हैं, राइट, मॉडर्न अप्रोच. सो गाइस, दिस आर द 5 major functions of business organization: planning, organizing, staffing, directing and controlling. As you can also see that after these all five are internally connected with a coordination. Understood? What is a coordination? Coordination is required every stage of the management. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मैनेजमेंट के हर क्षेत्र में, हर जगह, हर विभाग में इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप वर्क नहीं कर सकते, राइट. लाइक एग्जांपल ऑफ, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ फुटबॉल मैच. In the last slide also we have seen that if that team will not work coordinately, if they will not work with a coordination, they will not achieve the goal. In the same way, planning, organizing, staffing, directing and controlling, these all are coordinate with each other. If any one of it's lacking, कोई एक भी अगर प्रॉपर काम नहीं करती या फिर इफेक्टिवली काम नहीं करती, तो उसका इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर देखा जाएगा. सो लेट्स सी द मीनिंग. टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन हार्मोनी अलॉन्ग विद द डिफरेंट फंक्शन कैरिड आउट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन. तो प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, दिस डेफिनेशन यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. ठीक है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस. कोऑर्डिनेशन को प्लस समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेटमेंट को समझें कि इफ़ एवरीवन इज़ मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर देन द सक्सेस टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट. यानी अगर सभी लोग साथ में मिलकर एक साथ काम करते हैं तो जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आप सिंगल या फिर इफ़ यू आर नॉट वर्किंग अलोन, मैनी पीपल आर वर्किंग टू यू. ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो सक्सेस तो आपके पास आनी ही है, because you are not working alone. So what are the characteristics of coordination? Let's see this. There are 6 coordinations characteristics were given to you. I'm reading out. Let's make it fast. Coordination is required at all stage. हमने पढ़ लिया है. ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिस्क को कम कर देती है. यानी आपने प्लान जो भी किया हुआ है, आपने कंट्रोल कर रहे हैं. अगर आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी आपने क्या प्लान किया हुआ है, जो सोचा हुआ है, आपके दिमाग में रखा हुआ है, whatever the things you have in your mind, आप उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अंडरस्टूड. दैट्स वाई प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
Therefore, second, coordination required at every level. I have told you. Third one, it provide you success in a effective communication. अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, राइट. नंबर 4, कोऑर्डिनेटिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन. अंडरलाइन दिस, कोऑपरेशन. कि वाई? इफ पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, लोग अगर एक दूसरे को सहयोग नहीं करते, एक दूसरे की बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो वो कभी भी एक हेल्दी इन्वॉल्वमेंट नहीं बना पाएंगे और वो हेल्दी इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. अंडरस्टूड. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन. सो कोऑपरेशन रिक्वायर्ड इन कोऑर्डिनेशन. ठीक है. एंड देन कम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आई होप एवरीबडी नोस, सबको पता है कि अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्प्लीटली यूज़ करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. And then comes point number 6, which is coordination is a part of activity of management. हाँ, although ये फंक्शन मेंशन नहीं है, बट फिर भी ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है मैनेजमेंट का कि प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग से डायरेक्टिंग के बीच कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग के बीच कोऑर्डिनेशन, और कंट्रोलिंग से प्लानिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाएगा अगर आपने हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखा है तो. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. कि क्यों ज़रूरी हो जाता है इतना कि हम कोऑर्डिनेशन, जो कि एक स्टेप नहीं है फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं. सो लेट्स सी दिस. नंबर 1, कोऑर्डिनेशंस मेक्स मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मोर इफेक्टिव. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है और आप जितना सोच रहे हैं आप उससे भी ज़्यादा अचीव कर पाएंगे अगर आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करते हैं तो. सेकेंड इज कोऑर्डिनेटेड मेक्स पॉसिबल फॉर द बिजनेस मेक ईजियर. आसान बना देता है बिजनेस को और ईजी, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. थर्ड वन, कोऑर्डिनेशन डज नॉट लीव वर्क इनकम्प्लीट या फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कोई भी काम अधूरा नहीं होगा या फिर डुप्लीकेट नहीं होगा. इन शॉर्ट यानी एक ही काम 2 बार भी नहीं होगा और अधूरा भी नहीं छूटेगा. इन शॉर्ट जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही होगा अगर आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं तो. एंड देन कम पॉइंट नंबर 4, कोऑर्डिनेशन मेंटेन हार्मोनी इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट. आपस में जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी विभाग हैं उस मैनेजमेंट के अंदर, संस्था के अंदर, वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा. एंड देन कम्स पॉइंट नंबर 5, विच इज़ कोऑर्डिनेशन एनेबल्स एंड मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑर्डर एंड टाइम ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म बाय वेरियस डिपार्टमेंट. ठीक है. अब ये आपको समझ में आएगा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, फंक्शनल एरिया, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ है मैनेजमेंट के, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन सब के अपने अपने काम होते हैं. ठीक है. सो ये हर लेवल पर इम्पॉर्टेंट है. कैसे जानते हैं आगे. एंड द लास्ट पॉइंट इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कोऑर्डिनेशन लीड्स टू अकम्प्लिश प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव. जो भी आपने सोचा है वो आप कंप्लीट कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट. सो दिस is the completion of the function of management. Now we are moving to functional area of management. जनरली आप लोगों को 4 फंक्शनल एरिया दिए हैं. ठीक है. आपको स्लाइड में देख सकते हैं कि फर्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मार्केट के बारे में नॉलेज. वट एवर इज गोइंग इन द मार्केट आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट बताती है. सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. आपकी संस्था में द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू मैनेज देम प्रॉपरली. अंडरस्टूड. सो दैट शोज HRM मैनेजमेंट. थर्ड इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंस इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस. सो टू रिक्वायर्ड फंड, कहाँ से जनरेट करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जाता है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना प्रोड्यूस करोगे इन फ्यूचर, कैसे करने वाले हो, वो सब आपको इसमें दिखाई देगा. सो देर आर 4 फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट. अंडरस्टूड. मार्केटिंग मैनेजमेंट, HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, विच इज थर्ड वन इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दिस 4 आर कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियल एरिया. ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट वन वी आर सीइंग मार्केटिंग मैनेजमेंट. एज यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द सेलर. यानी जो उपभोक्ता है आपका, जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, ठीक है, उसको आपको चीज़ें पहुंचानी है. कहाँ से पहुंचाएंगे आप? प्रोड्यूसर से. ठीक है. जो भी उसे प्रोड्यूस कर रहा है आप, क्योंकि आप एक लिंक बन रहे हैं.
आपने 11th में पढ़ा हुआ है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल दोज आर वर्किंग है, लाइक रिटेल, होलसेल या फिर किसी भी तरह में आप काम कर रहे हो, उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मार्केट की नॉलेज रखें, ठीक है। इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ मार्केट, इफ़ यू हैव ऑल द थिंग्स ऑफ योर मार्केट विथ यू, तो ये बहुत फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, या फिर हम कहें बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में काम करता है। जनरली मार्केटिंग देखा जाए तो 5 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर काम करती है, एज यू कैन सी ओवर हियर। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, इंटरनेट, प्रोडक्ट, रिसर्च, स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर नंबर 1। नंबर 2 HR मैनेजमेंट, आप देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना है, उनके लाइक्स, डिसलाइक, उनके ओपिनियंस, उनकी नॉलेज, प्रोफिशिएंसी, उनके एटीट्यूड, उनकी कैलिबर, उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए काम बांटना है, सेकेंड। थर्ड फाइनेंस मैनेजमेंट ज़रूरी है, बिजनेस में पैसा लगाना है। और फोर्थ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट को भी 2 पार्ट में मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है, प्लानिंग और कंट्रोल में, ठीक है। प्लानिंग में पहला कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे प्रोड्यूस करोगे, कब कब करोगे और उसको लोड करोगे। लोड मीन्स आफ्टर प्रोडक्शन आप उसे कहाँ रखोगे, फिर आप उसे डिस्पैच करोगे, डिस्पैच मीन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फॉलोअप लोगे कि वो चीज़ सही सलामत पहुँची नहीं पहुँची, फिर आप इंस्पेक्ट करोगे, क्वालिटी एनालिसिस, एंड लास्ट इज करेक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसे वापस से करेक्ट करोगे। एंड फिफ्थ डायग्राम शोज़ यू, जो मैंने बनाया है, कि फर्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप अच्छे से मार्केट की नॉलेज रखिए। सेकंड, आप फाइनेंस को जनरेट करिए, बिजनेस में लगाइए। थर्ड, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करिए। और फोर्थ, प्रोडक्शन, जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे बेचिए। एंड फिफ्थ पॉइंट विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट फिर भी आप समझ लीजिए कि रिसर्च और डेवलपमेंट अगर आप करेंगे तो फ्यूचर में आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो as I have told you that marketing management is based on P4, याद रखिएगा P4। P1 is product mix और product, we can say product की पूरी नॉलेज। सेकेंड इज प्राइस, कीमत। फोर्थ इज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फोर्थ इज प्रमोशन मीन्स कि आप कैसे उसकी कैसे आप आइडेंटिटी दोगे अपने प्रोडक्ट। तो ये 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। नंबर 1 प्रोडक्ट, एज आई हैव टोल्ड यू कि आपका शेप, साइज़, कलर, वेट, प्रिंट, पैकेजिंग कैसी होगी, ये सब कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड होता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग जिसके भी कहते हैं। सेकंड इज़ प्राइस, आप कितने कीमत पर अपने प्रोडक्ट को निकालेंगे, यानी जो भी आप ये बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्राइसिंग नहीं रखेंगे तो पीपल विल नॉट क्रिएट इफेक्टिव डिमांड, शायद आपके पास वो ना भी आए, तो प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसे, हाउ यू विल मेक अवेलेबल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। आपके रिटेलर्स कौन होंगे, आपके होलसेलर्स कौन होंगे, आपके चैनल्स क्या होंगे, आप कौन से एरियाज़ में ज़्यादा काम करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है। और लास्ट इज़ प्रमोशन, आपके एडवर्टीज़ कहाँ कहाँ होंगे, बैनर्स, होर्डिंग्स, मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया, आप कौन सा चैनल यूज़ कर सकते हो। तो दिस 4P, P4 प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, ये आपको याद रखना है मार्केटिंग के 4 P4 जो इम्पॉर्टेंट होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। एंड देन कम्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एज आई हैव टोल्ड यू, ह्यूमन आर द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो वी नीड टू ऑर्गेनाइज देम इफेक्टिवली। एज यू कैन सी दैट लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड व्हीकल्स, ये सब चीज़ असेट है बिजनेस का। उसी तरह एम्प्लॉय भी बिजनेस के क्या होते हैं, असेट होते हैं, लाइव असेट होते हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिए, लाइव, सेकंड लाइन, लास्ट वर्ड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लाइव असेट, ठीक है, चलते फिरते असेट होते हैं। और ये असेट बिजनेस को सक्सेस दिलाने में बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर वाइटल रोल प्ले करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सक्सेसफुली अचीव देयर नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं हम उन्हें खुश रखें। इफ़ विल मेक देम हैप्पी, इफ विल फुलफिल देयर ऑल द नेसेसिटी, हम उनकी सारी ज़रूरतों को अगर पूरा करते हैं और वो खुशी खुशी हमारे लिए काम करते हैं तो वो अच्छा काम करेंगे, राइट। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। दैट्स वाई हियर ड्यू टू सच केयर, एंथुसियाज्म, लॉयल्टी, फीलिंग, वननेस ऑफ एम्प्लॉय डेवलप्स इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी, ठीक है। यानी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको उनकी केयर करनी होगी, उन्हें मोटिवेट करिए, आप उनके प्रति लॉयल रहिए, वो आपके प्रति लॉयल रहेंगे, भरोसेमंद। एंड देन फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है, अपनेपन की भावना कहीं ना कहीं होनी चाहिए, तभी वो एम्प्लॉयज़ आपके लिए अच्छे से काम करते रहेंगे। एज सिंपल मीनिंग यू कैन सी
over here, which is human resource management is a process like consideration of matter like proficiency, knowledge, intelligence, likes, dislikes. उसकी प्रोफिशेंसी कैसी है, नॉलेज कितनी है, कितना इंटेलिजेंस है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको उसको टास्क अपॉइंट करना है, ठीक है. इफ़ ही इज़ गुड इन प्लानिंग, रिसर्च डिपार्टमेंट में अच्छा है तो आप उसे रिसर्च डिपार्टमेंट में डालें. मार्केट के बारे में नॉलेज है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालें. प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखें. सो ये एक अलग अलग वेरिएशंस हैं कि अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी वी हैव टू अलॉट द पीपल. कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, आपको 7 दिए हुए हैं यहाँ, फटाफट देख लेते हैं. सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन और डायरेक्शन ह्यूमन रिसोर्स में आता है कि आप सिलेक्ट करिए, ट्रेन करिए, प्रमोट करिए और डायरेक्ट करिए. सिलेक्ट द पीपल, ट्रेन द पीपल, मोटिवेट द पीपल एंड कीप द पीपल. ये 4 चीज़ याद रखिएगा. ह्यूमन रिसोर्स देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में. सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट enables the business objective and integrate the people. हाँ, इंटीग्रेट द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. लोग आपस में एक दूसरे, लाइक सपोज इफ आई एम वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे जो पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ मुझे और नेक्स्ट अच्छी पोस्ट मिले. उसके लिए क्या करना होगा, अच्छा काम करना होगा, ज़्यादा बेनिफिट देना पड़ेगा, ज़्यादा सेल्स देनी पड़ेगी, तो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को भी तो उसका फ़ायदा होगा. यस और नो. तो हर मैनेजर के दिमाग में, हर एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट के दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि आप अपने आप को डेवलप करिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी. एंड देन कम्स पॉइंट नंबर 3, बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ टू मैनेज द एम्प्लॉय विथ वैल्यूएबल बिजनेस असेट्स. डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे असेट होते हैं और हमें अच्छे से इनका यूज़ करना है, इफेक्टिवली यूज़ करना है, ठीक है. पॉइंट नंबर 4 शोज़ यू प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इनको. इफ़ यू विल नॉट प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, अच्छे से नहीं सिखाया अगर आपने, तो दे विल नॉट वर्क इफेक्टिवली. एंड देन कम्स पॉइंट नंबर 5, HRM evaluates परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय. इवेल्युएट, राइट. 12th कॉमर्स रिजल्ट डिस्कस किया अभी हम लोगों ने कि अगर हम इवेल्युएट करेंगे तभी हमें परफॉर्मेंस पता चलेगी कि जो हमने सोचा था क्या वो हो पा रहा है या फिर नहीं. एफिशिएंट मैनेजमेंट लेबर टर्नओवर रेट को भी कम करती है. होप एवरीवन नोन इन अकाउंट्स लेबर टर्नओवर रेशियो, कि जितना खर्च हम लेबर्स के पीछे कर रहे हैं अगर वो इफेक्टिव हो जाते हैं, वो ट्रेंड हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह काम करेंगे, हमें ज़्यादा खर्च उनके प्रति नहीं करना पड़ेगा. तो ये रिड्यूस करता है हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो, और उसके साथ साथ स्किलफुल बनाता है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करते हैं. एंड लास्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कंडीसिव इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज़. अच्छे एक वातावरण बनता है, एक अच्छा सा रिलेशन डेवलप होता है HRM की वजह से, जिससे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में रिलेशंस के साथ ऑब्जेक्टिव्स अटेन होते हैं. सो लेट्स सी द इम्पॉर्टेंस हियर. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, इट प्रोवाइड एफिशिएंसी, it provide good profit for the organization. As you can see over here कि recruiting is not just human resource. recruiting के बाद हमें ये देखना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसे ट्रेन करना, उस पर रिसर्च करना, उसकी स्किल्स को देखना, ठीक है, उसके पोटेंशियल को देखना, उसे लीडरशिप में प्रोवाइड, लीडरशिप है या नहीं है, काम कर सकता है नहीं कर सकता, ये सारे काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं. एंड देन कम्स to the next page, which is the last page of chapter number 1, page number 12. Third importance we are going on right now. Business is a prestige maintain होती है business की, higher standard maintain होते हैं, development होता है employee का, maximum utilization of resources होते हैं, अच्छे से resources को utilize कर पाएंगे. Reduction of labor turnover ratio डिस्कस कर चुके हैं. Job satisfaction होगा. कैसे job satisfaction होगा, अगर कोई, if a person is working in my organization and I am taking care, giving good salary to him, taking care of him, likes dislike, तो वो मेरे लिए अच्छे से काम करेगा. that is the meaningful. So last but not the least, due to HRM job satisfaction के साथ efficiency improve होती है, ठीक है. So we have studied these two management, marketing management and human resource management, why it is important. We are moving on to third one, which is financial management. As I told you, finance is anything related to capital market. पैसा बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू इस्टेब्लिश, डेवलप, एक्सपैंड और मॉडर्नाइज योर बिजनेस. अगर आपको बिजनेस चालू करना है, विकसित करना है, उसका विस्तार करना है, एक्सपैंड करना है, बड़ा बनाना है और मॉडर्नाइज करना है, आधुनिक करना है, ठीक है, तो आपको पैसा चाहिए. उसके लिए फाइनेंस मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एज यू आर गिविंग फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक वेरियस फंक्शंस लाइक इट एस्टिमेट फाइनेंशियल नीड. ये बताता है कि बिज़नेस में कितनी
पैसे की ज़रूरत है और कब कब पैसों की ज़रूरत होगी। सेकेंड, टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करता है कि फाइनेंशियल प्लान आप किस तरह बनाएं। थर्ड इज़ प्रिपेयर बजट, अलोकेट द फंड, सिलेक्ट द सोर्स, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कितना, कहाँ मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके लिए भी काम करता है। पॉइंट नंबर 6, एक्वायरिंग फाइनेंस, फाइनेंस को आप कैसे एक्वायर करते हो, जैसे अपने दिमाग में पढ़ा हुआ है, शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स या बॉन्ड अगर आप इशू कर रहे हो, आप कैसे बिजनेस के अंदर पैसा ला रहे हो, उसके अलग अलग चैनल्स हैं। तो जो आपका सबसे बेनिफिटेड चैनल है आप उसको यूटिलाइज करिए। अंडरस्टूड। एंड देन कम्स पॉइंट नंबर 7 विच शोज यू अक्यूमुलेट द फंड, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल पॉलिसी, टैक्सेस एंड एसेट्स इनके लिए, ठीक है, बिकॉज टैक्सेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, फॉर द गवर्नमेंट यू नीड टू पे। सो दिस ऑल आर द बेसिक फंक्शंस जो ये बताता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने 3 फंक्शनल एरियाज अभी तक देख लिए हैं। नंबर 1 हमने जो सबसे पहले देखा मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेकेंड हमने देखा जो है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले अभी तक हमने 3 देख लिए हैं। नंबर 1 इज़ मार्केटिंग, सेकेंड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड थर्ड वन जो अभी हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे चौथा जो लास्ट एरिया है वो आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन नेचुरल अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू अ कंज्यूम्ड फिनिश्ड गुड्स, नेचर से जो मिल रहा है उसे आप कंज्यूमेबल बनाने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट से। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोवाइड्स यू गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स ऑल्सो कैपेबल टू सेटिस्फाई योर कस्टमर नीड्स, राइट। कस्टमर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। अगर उन्हें नहीं पता होगा तो वो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर अपनी चीज़ों को नहीं बना पाएंगे, राइट। दैट्स वाई द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन हियर। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम्स, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कीप कंट्रोल, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इट। And 10 important points were given to you of production department. Number 1, to decide production plan, क्या बनाना है, कितना बनाना है। Number 1, undertake production research, properly research करके produce करें। Third, select product department, product mix, shape, size, color, printing, all this. Select technology and machinery, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कैसी मशीन होगी यूज़ करने के लिए। डिसीजंस लीजिए, कहाँ कहाँ बनाएंगे, लोकेशंस, राइट। अगर आप लोकेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेयर स्टूडेंट देर आस्किंग व्हाई लोकेशन इज इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। लाइक सपोज फॉर एन एग्जांपल, इफ यू विल सेल रेफ्रिजरेटर इन कश्मीर, राइट, दे विल नॉट buy. Why? Because if you are selling a wrong thing on a wrong place. If you sell the refrigerator in South or in Rajasthan or somewhere any place where it is a hot place, it will sell. Understood? So it is very much important for the production department to understand and channelize their locations. And then comes point number 5 is location. Number 6, to estimate required materials and need of production, have a control, quality measures बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी नहीं रखते अपने प्रोडक्ट में तो आप कभी भी डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएंगे, पीपल विल नॉट लव यू। अंडरस्टूड। देन number 9 shows you to undertake activities to control expenditure, cost of maintain, increase of productivity। आप कैसे ना कैसे करके अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करिए, राइट, क्वालिटी का नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करिए, जिससे आपके बिजनेस में ऑटोमेटिकली जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाए। एंड लास्ट, इट इंट्रोड्यूस वेरिएशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जितना आप प्रोडक्ट को सिंप्लीफाइड करके लोगों के सामने रखेंगे, लोग उतनी जल्दी उसे समझेंगे और उतनी बेहतर तरीके से आपके प्रोडक्ट को रिस्पॉन्स देंगे। सो गाइस, ये थे 4 इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, विच इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट नंबर 1, HR मैनेजमेंट नंबर 2, फाइनेंस मैनेजमेंट नंबर 3 एंड लास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये 4 ऐसे एरिया हैं जहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो एज यू कैन सी, दीज आर 10 मेजर फंक्शंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो, एंड दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। एंड नाउ कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ ली है, व्हाट थिंग्स वी हैव स्टडीड। We have seen meaning, definition, importance, nature of management. Then we have seen management as a art, science and profession, right? As you can see over here, I have highlighted some points also. Then we have seen level of management, top, middle and lower level, bottom level. I have highlighted that also. And then today we have studied functions of management, planning, organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है, this 5 functions we have studied, that also I have mentioned. And then coordination,
meaning of coordination, importance of coordination, and then characteristic of coordination. And now that we have studied about marketing management, production management, HR management, and finance management. So hope these my efforts have worthful for you, and hope you all have understood with this whole 3 parts of my video. Thank you for your attention. Be safe at home. We'll be back soon. Thank you. Jai Hind.